आपको पता है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जब क्विक कॉमर्स पे चली गई है, अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने अभी ऑर्डर किया तो घंटे भर मेरी बेल नॉक करेगा और पार्सल मेरे पास आ जाए। उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे हम ओवरनाइट से हट के क्विक कॉमर्स पे आ गए हैं, वहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बहुत क्विक रश डिलीवरी मिल रही होगी। स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करते हैं, वी ऑलवेज हैव अ पेशेंस एंड बिलीव एंड करेज। दीस थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फॉर इंस्टेंस, इफ समबडी इज गिविंग मी इन लास्ट 15 days 5 पार्सल एंड द सक्सेस रेशियो ऑफ एक्सेप्टेंस इज लेस देन 50%, तो उसको मैं अपनी ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में फॉलो इन करवाता हूँ। बच्चा है जो मार्केट में भी पहली दफ़ा आया, वो बड़ा एंथुजियास्टिक है टू गो एंड ग्रो हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी। तो उसको ये चीज़ पता लगे कि ये गैप वो है जिसको अगर वो आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करता है तो नेक्स्ट इंटरव्यू में वो उससे बेहतर फॉर्म कर। स्टेटमेंट फॉर योर सेल्फ, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव करते हो, क्योंकि दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको डिस्करेज करने में मिलेंगे, इंकरेज करने में मिलेंगे, लेकिन अगर आपका बिलीफ अपने ऊपर स्ट्रॉन्ग है और अपने वो बिलीव रखते हैं और अल्लाह ताला भी यकीन है कि वो आपके लिए बेहतर बेस्ट प्लानर है, तो फिर आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला किसी चीज़ भी कोई नाकामी का सामना नहीं करना। Assalamu alaikum viewers, my name is Umair Arshad. I'm the Chief Operating Officer at Hive Metrics. New Commerce Podcast is brought to you by FutureFest. Today we have a guest with us who has completed more than a decade in the industry, who is very versatile when it comes to e-commerce, when it comes to logistics, when it comes to customer support, when it comes to all the solutions and integrations technically and marketing. From aspect of view, he has a very good social media exposure as well. He started his journey from Call Courier, then he moved to Orient Electronics, and then the journey continued. And today, mashallah, after serving more than a decade in the industry, he's the regional sales head for Trax Logistics, none other than Ali Qureshi. Assalamu alaikum Ali, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जी। सर वेलकम, वी आर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू कि इस बिजी रूटीन में भी माशाल्लाह, बिकॉज आप टीचिंग भी कर रहे होते हैं और आप यू आर इन्वॉल्व इन सो मैनी बिजनेसेस एज वेल। एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमें जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, माशाल्लाह आपकी कंपनी जिसके आप फाउंडर एंड सीईओ हैं, एमएच कंसल्टेंसी सर्विसेज, दैट इज आल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड यू आर वन ऑफ द पीपल इन द इंडस्ट्री आई नो जो हर काम पैसे के लिए नहीं कर रहा है। यानी कि देयर आर सो मेनी थिंग्स, आपने देखा कि बोटलनेक बन गया, पैसे की जरूरत, पैसा आ गया ठीक है, नहीं भी आया तो यू डिडंट मेक द वर्क वेट फॉर इट. We really appreciate this, and I am thankful to you on behalf of FutureFest. You are also connected to FutureFest from the very beginning. We did it together. We started together, and mashallah, the CEO of FutureFest and Ijad Labs, Arzish Azam, has done a great job in connecting the community. You have helped us a lot in connecting the community and building a community center. Today we will begin. We'll take you back. जहाँ से journey start हुई थी. Please tell us about your educational background, your family background, and how did you enter into the industry? Umair, बहुत शुक्रिया. First of all, congratulations to FutureFest for starting this kind of initiative. It's very important, and it's a very good kind of opportunity to just connect all these kind of professionals on a single platform. Well, I started back in 2004. I completed my master's in computer sciences from Comstat University, and after doing this master's degree, I went to Shaukat Khanum Hospital on an internee kind of a position. Initially, I worked over there to develop their paper-free kind of a environment, which is nowadays called as an ERP, as a paper-free kind of environment. I developed a complete kind of a solution over there. But after doing this 6 months kind of internship, I just come over and मुझे अंदाज़ा हुआ कि यार ये वाली फील्ड शायद मेरे लिए नहीं है. मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल जो कंप्यूटर साइंस को दिए वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी लर्निंग थी, बट दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई एम सपोज टू डू. तो मैंने अपनी पूरी जो जर्नी थी उसको बहुत शिफ्ट कर लिया एंड आई कम्स टू द सेल्स एंड मार्केटिंग काइंड ऑफ a job. And it was a very difficult kind of a thing initially, because when I started my first career, like after quitting this whole internship kind of a stuff, I started my first job with the MNC with the name of CKWI. This was a business consultancy firm. They have a very diversified kind of a business model. They have IT services, they have business development, they have event management kind of a thing. So I was basically taking care of all the IT department over there for all the development kind of a scenario. तो वहाँ पे मुझे IT का ये ज़रूर एडवांटेज हुआ कि मैं डेवलपर शायद इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन सूडो को डेवलपमेंट करना और उसकी पूरी एल्गोरिथम, उसका जो डिज़ाइन डेवलप करना, उस पर मेरी बड़ी अच्छी एक्सपर्टीज थी. जो कि डिग्री मेरी वो थी, उससे मुझे बड़ा सपोर्ट किया, बड़ा कॉम्प्लीमेंट किया. हमने तकरीबन मैंने वहाँ पे कोई 8 साल की मेरी जर्नी वहाँ पे रही, जिसमें मैंने मुख्तलिफ फेजेस पे मुख्तलिफ लेवल्स पे काम किया. मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला. यूएई में मैं 3 साल एक डिप्यूटी रहा. वहाँ पे एक रॉयल फैमिली, रासुल खैमा फैमिली, शेख खालिद, उनके साथ डायरेक्टली मुझे काम करने का इत्तेफाक हुआ. और वहाँ पे 2 ऑयल्स की रिफाइनरीज है, एक एडको और एडनॉक के नाम से. तो हम लोग एडको के साथ हमने उनके पूरा ऑटोमेशन का सिस्टम बनाया, जिसमें वो पहले एक्सेल शीट्स पे काम करते थे, क्योंकि जो वेल डिगिंग का प्रोसेस है, इट टेक्स मिनिमम 10 to 50 ईयर्स काइंड ऑफ अ टाइम. तो हर 5 साल के बाद, 3 साल के बाद वो उस बिज़नेस को एवेलुएट करना चाहते हैं कि हमें कितनी इन्वेस्टमेंट की और ज़रूरत है, हमें कितना आगे लेके जाए. तो वहाँ पर मैंने काम किया. तो 7-8 साल की मेरी जर्नी वहाँ पर रही CKWI में.
जहाँ पे मैंने बहुत लर्निंग की, ग्लोबल लेवल पे मेरा बड़ा एक्सपोजर रहा, बहुत ट्रैवलिंग हुई, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया का जो एस्पेक्ट हम पाकिस्तान बैठ के एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, जो चीज़ समझ रहे होते हैं, उससे बहुत बड़ा है, कैनवस बहुत बड़ा है, हम एक छोटी सी एंटिटी में बैठ के चीज़ों को कर रहे होते हैं, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स विच वी कैन डू। उसने मेरे ग्रूमिंग में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं आज जहाँ पे हूँ, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, उस कंपनी के लोगों का मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा। आफ्टर सर्विंग ऑलमोस्ट 8 years, आई जस्ट क्विट ओवर फ्रॉम देयर and I joined Call Courier, which is the latest name kind of a startup. Before of this, it was a Excel Solutions kind of a बिल्कुल, company. that is the group behind it, ना? Yeah, it's an Excel group behind it. And initially, I was responsible for all the corporate business which they have for the banking sector, for the telecom sector. Like we are supposed to do all the data processing, all the data printing, and then the distribution delivery all over the Pakistan. आपके जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं, आपके जो क्रेडिट कार्ड के बिल्स होते हैं, आपके जो पोस्ट पेड के बिल्स होते हैं, इन तमाम प्रोसेस को हम वहाँ पे रन करते थे। तो मेरा वहाँ पे कोई 7 साल का वहाँ पे भी टेन्योर रहा, उसमें से कोई 4-5 साल मैंने जो सारा काम किया वो सारा सारा इसी कॉन्टेक्स्ट में रहा, और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, सारे बैंक्स को, डिफरेंट कंपनीज को मैं लुक आफ्टर करता रहा एज अ बिजनेस मैनेजर। After 5 years, I just feel that market is going in a different kind of a direction, and e-commerce something which should be and which can be comes into the bucket, and maybe some very lucrative kind of option comes out. So I just talked with my CEO over there, Mr. Jawad, and I said him कि भाई ये एक ऐसी opportunity जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, and he was very kind and he was very a person who trust me, and उन्होंने मुझे कहा कि बिल्कुल आप इसको इनिशिएट करें, आप इस पे स्टार्ट करें। हमने बहुत अर्ली एज पे अपना काम शुरू किया। कुछ मार्केट में जो पहले लोग काम करते, जो मार्केट के पाइनियर्स थे, जो बहुत लॉजिस्टिक में स्ट्रॉन्ग थे, उनकी तरफ से कुछ ऐसे सेटबैक्स चल रहे थे जिसमें हमें अपॉर्चुनिटी नजर आई, तो हमने मार्केट में उसी को इंट्रोड्यूस करवाया। हमने ई कॉमर्स को बहुत अर्ली एज पे स्टार्ट किया, हमने इसमें दराज के साथ काम शुरू किया, डिफरेंट ब्रांड के साथ काम शुरू किया, तो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग रही। तो 2 साल में वहाँ पे पूरा ई कॉमर्स का सेटअप डेवलप करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको प्रॉपर्ली पेनिट्रेट करना ऑल ओवर द पाकिस्तान। At that time, I was basically heading the all over the Pakistan kind of a sales. So I have this opportunity to disconnect with all the people, all the big players all over the Pakistan. तो वहाँ पे मैंने कोई 7 साल काम किया, और उसके बाद फिर मुझे फिर लगा कि यार अब मतलब मेरी कहीं जो पोजीशन है वो थोड़ी स्टेगनेट हो गई, क्योंकि मेरी जितनी भी इस पूरी टेन्योर में जो एक्सपीरियंस रहा, उस एक्सपीरियंस पे कभी भी मैंने मॉनेटरी बेनिफिट को बहुत ज़्यादा इंकरेज या एम्फेसाइज नहीं किया। द मेन थिंग विच ऑलवेज गिव मी encouragement and the source of energy to just comes out of this whole kind of a venture is this, that I would love to explore my competency. I would love to have a canvas where I should draw something. I've seen this, that you don't love being in the comfort zone. You always want to be in a challenging position and situation, yet so that you fight with the scenario and situation and position, and then success निकलती उसी में से, growth निकलती उसी में से। Once you are into your comfort zone, आप relax हो जाते हैं। Yeah, exactly. And then comes Orient Electronics. Yes, then it comes to the Orient Electronics, which is a very different kind of a. By the way, this is not a Orient Electronics. It's basically their technology with the name of Blue East. So I was basically directly working with them. But certainly, when talking about our tangible products and electronics kind of a stuff. So in my first interview with Abdul Talat, who was the CEO over there, he just asked me, the whole journey which you have till now, it's all belongs to service industry. So this is a hard-coded kind of how you can sell. So मैंने कोई बात बताई कि selling is my passion, selling is my love actually. तो जो बंदा बेचना सीख सकता है वो कुछ भी बेच सकता है। ट्रू, सही बात है। वहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में जो एक्सपीरियंस रहा वो इसी ई कॉमर्स को मैंने कॉम्प्लीमेंट किया। वहाँ पे उनका ई कॉमर्स का एक मार्केट प्लेस था विद द नेम ऑफ क्लिकपॉल, उसको हमने डेवलप किया। वहाँ पे हमने प्रोडक्ट एक्विजिशन की, प्रोडक्ट की अलाइनमेंट की, उसकी मार्केटिंग की, उसकी मार्केट स्ट्रेटेजीज पे काम किया, और उसके बाद सेलिंग की पूरी प्रपोजिशन। प्लस चूँकि लॉजिस्टिक का मेरा बैकग्राउंड था और इन तमाम ब्रांड्स को मैं पहले से जानता था, उनको मैंने सब क्लब किया, और क्लब करने के बाद वहाँ पे हमने उसको स्टार्ट किया। So that journey was not a very bigger, longer time kind of a time span. It's just a 3 years kind of a time over there. I worked over the 3 years. जिसमें इनिशियली मैंने वही सारा काम किया जो ई कॉमर्स से रेलेवेंट था। फिर जब कोविड आ गया, कोविड ने एक सेटबैक हमें थोड़ा सा हिट किया। जो ई कॉमर्स की चीज़ें तो हमारी चल रही थी, फिर उन्होंने थोड़ा डाइवर्सिफाई किया, बिकॉज दे आर वर्किंग इन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, IoT सोल्यूशन पे वो लोग काम करते थे, एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते थे। तो फिर वहाँ पे उन्होंने मुझे एक एडिशनल रोल दे दिया एज अ रीजनल हेड, जहाँ पे मैं उनकी जितनी कॉर्पोरेट सेक्टर था उनको हमने एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पे कुछ प्रोडक्ट्स बना के, जिसमें ACs वगैरह की, लाइट्स की, कि उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है, बिलिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर कोई 1 साल मैंने उसमें वहाँ पे काम किया, जिसमें सारा कंप्लीटली मैं कॉर्पोरेट सेक्टर को देखता रहा। तो 3 साल की जर्नी के बाद पे मुझे लगा कि शायद मैं अपनी जो ट्रैक था जिसमें मैं ई कॉमर्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहा था, मैं लॉजिस्टिक पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर रहा था, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन कर लिया, जो शायद मुझे लगा कि शायद लॉन्ग रन में मुझे शायद अभी इम्पैक्ट उस पर नहीं मिलेगा। तो दरमियान में मेरी ट्रैक्स में जो है वो गपशप लगते, वकास डार इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ही इज़ नाउ हेडिंग एज अ GM पोजीशन। उनके साथ मेरी पिछले कुछ 10 सालों की जर्नी है, और हम लोग मुख्तलिफ आइडियाज़ में मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटी, हमने हमेशा से इस चीज़ पे एम्फेसाइज किया कि लॉजिस्टिक शुड बी द इंडस्ट्री,
it is not a service provider kind of it should be an industry, then it can be in a vital role to play a very dominating kind of a position. दुनिया के एक बहुत बड़े कारोबारों में से एक बहुत बड़ा कारोबार है लॉजिस्टिक्स, जिसको आज भी या कुछ एरियाज में इसको राहदारी भी कहा जाता है. टू मूव गुड्स अराउंड द ग्लोब, this is one of the biggest challenge, this is one of the biggest domain, and this is something which requires a lot of experience. So it's always good talking people like you, because there are very few people in the industry, those who are in logistics, but they were never, or they are not part of the e-commerce, because your career and your journey drives, you were providing the services, and then आपने टेक में भी काम किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री भी की हुई है, ई-कॉमर्स की भी आपकी जो है ना नॉलेज है, बिजनेसेस और ब्रांड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, you're part of it, and it's very good. Now you're heading as you are the regional sales head for Trax. So we would like to ask you, I would like to ask you कि आपकी what is your job description, and what is your duty and responsibility to ensure? Okay, but basically in Trax, when I'm talking my position, it's a regional head sales over here, and I am responsible to just develop the overall business strategy and business impact for this my region, which I belongs to. And I have a team of almost 30 people who are directly reporting to me. तो मेरा आइडियोलॉजी ये था कि मैंने एक बहुत अच्छा एक इंडस्ट्री में गुजारा, और मुझे लगता था कि अब हमें मैं बड़ा ओपनली बात करता हूँ कि आफ्टर स्पेंडिंग 20 years corporate sector kind of experience in different organizations, I would love to establish a new Ali Qureshi into the market. So this is my passion, this is my energy, this is my concern. उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने दोबारा से इसको रीजॉइन किया और मैंने स्टार्ट किया. तो अब यहाँ पे जो मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन वो यही है कि पूरे पंजाब में मुझे अपने जितने भी क्लाइंटल हैं उनको डेवलप करना, स्ट्रेटेजाइज करना, और नई इनोवेशन पे, नई ऑटोमेशन पे काम करना. ट्रैक्स की एक पॉजिटिव चीज़ एस्पेक्ट ये रहा कि वी ऑलवेज बिलीव ऑन अ टेक्नोलॉजी बेस्ड काइंड ऑफ अ सोल्यूशन. वी स्टार्टिंग आर जर्नी फ्रॉम द फर्स्ट डे विद ऑल द डेवलपमेंट इन हाउस. वी वुड लव टू गो डाइवर्सिफिकेशन. हम वन स्टॉप सोल्यूशंस पे हम बिलीव. आई थिंक यू आर दी वन एंड ओनली लॉजिस्टिक्स कंपनी इन पाकिस्तान जिसका अपना सारे इन हाउस सोल्यूशंस है, सारी सर्विसेज आप इन हाउस डेवलप कर रहे हैं, और अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग और अपने क्लाइंट्स को और अपने कस्टमर्स को टू इंश्योर टू मीट देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, यू आर प्रोवाइडिंग ऑल दी सर्विसेज इन हाउस. अदरवाइज मेजरली सबकी जो टेक पार्टनर्स हैं दे हैव आउटसोर्स दी सर्विसेज. So you understand the need and requirement, and then you build it yourself in order to ensure a good quality service. और हमने फिर मैं थोड़ा सा ये भी किया कि इंडस्ट्री में चूँकि बहुत बड़ा गैप था लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में, ग्रे एरिया बहुत ज़्यादा था, हमने उसको तो आइडेंटिफाई किया, उसको हमने फिक्स किया. क्योंकि इस इंडस्ट्री में खासतौर पर ई कॉमर्स की हम बात करते हैं, तो ई कॉमर्स इज़ नॉट समथिंग दैट यू पैक समथिंग एंड डिलीवर समवेयर अराउंड. इट इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम, इज़ अ कंप्लीट जर्नी इन बिटवीन, जिसको हमें कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना है. हमने उस पर डिफरेंट ऑप्शन पे हम कहें, हमने इंटरनेशनल डिलीवरी स्टार्ट की, हमने वेयर हाउसिंग और ई फुलफिलमेंट का सोल्यूशन पाकिस्तान में डेवलप इंट्रोड्यूस करवाया, जो बिल्कुल अमेजन के मॉडल पे काम करता है. और उस पर हमने उसको मोनोपोलाइज नहीं किया, हमने ये डिपेंडेंसी पैदा नहीं की जिससे कुछ पहले प्लेयर्स ने मार्केट में किया था कि अगर आपने सोल्यूशन हमारे से लिया है, हमारी स्पेस लिया, तो यू आर बाउंड टू वर्क विद अस. हम कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है. हमारी सर्विस इंडस्ट्री हमारी जो लॉजिस्टिक सर्विसेज है वो सेपरेट है, हमारी वेयर हाउसिंग और हमारी जो इन हाउस सर्विस है वो डिफरेंट है. इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, इफ़ यू आर नॉट ओके विद आवर सर्विसेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, you can work with us for the first mile, middle mile, for the warehousing, for the inventory management, and you can add up any other kind of a 3P into the market. बिल्कुल सही बात है आपकी. Speaking of this, Ali, we'll be discussing two parts, because this there is one side of the table, we need to hear the other side of the table, because we've been speaking to the brands, we've been speaking to the business people, and they keep blaming on the logistic part. We'll come to that part. Before that, I want to ask you, customer service plays an important role, in ensuring the order of the brands and everything. How important do you think customer service is related to your business and into the brands and business policies as well? Yeah, Umair, you are absolutely right. Nowadays, I think it's more like rather than to talk about customer service, it's a customer experience. Because customers is blending a complete kind of a journey with the customer with a confidence कि जहाँ पे वो फील करता है कि ये जो चीज़ मेरे पास आ रही है, ये जो बंदा चीज़ भिजवा रहा है, ही इज़ माई बिजनेस पार्टनर. क्योंकि अब जो आइडियोलॉजी है वो सर्विस प्रोवाइडर वाला जो एरा था वो ख़त्म हो गया. कोविड के बाद चीज़ें हमने बहुत सारी चीज़ होती देखी हैं. अब जो कॉन्सेप्ट आ गया वहाँ पे हमें कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस पार्टनर चीज़ों को प्लान करने की ज़रूरत है. और जब बिजनेस पार्टनर बनते हैं तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रेक भी उठाते हैं, आप चीज़ों को उसमें रिकवर भी करते हैं. तो कस्टमर एक्सपीरियंस में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, हमने ओवरऑल जर्नी को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट किया. और अपलिफ्ट इससा किया कि जहाँ पे हमारा जो एंड कस्टमर, जो हमारा शिपर है, जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है, और वो बंदा जिसको हम पार्सल दे रहे हैं, उसके अंदर क्लोज कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा काम किया जाए. और कम्युनिकेशन में कुछ ऐसे पैरामीटर्स पे काम किया जाए, कुछ ऐसी फैसिलिटेशन पे काम किया
जाए कि जहाँ पे उसको एक ईज़ मिले बजाय इसके कि वो हैसल हो। क्योंकि एक अरसे तक जब हम ई-कॉमर्स की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि ई-कॉमर्स बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं हो। अभी मैं बहुत अर्ली एज पे अपने को कंसिडर करते हैं। कोविड ने थोड़ा सा मैच्योर ज़रूर कर दिया, लेकिन मेजोरिटी को अपस्किल करने में टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा मसला होता था कि हम जब कोरियर राइडर जो है डिलीवरी के जाता था, वो फेक स्टेटस देता था। जैसे हमने जिक्र किया, ब्रांड्स का जो कंसर्न था वो बिल्कुल वैलिड था। हमने इस पर बड़ा कोशिश की। हमने अपने उस ब्रांड एम्बेसडर जो हमारा राइडर है उसको बहुत ज़्यादा हमने कन्विंस किया, उसको बहुत फैसिलिटेट किया, एम्पावर किया, अच्छा सैलरी पैकेज पे लेके गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पर इतना सक्सेसफुल नहीं हो सके। फिर हमने उसको टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं साथ हमने लिया और हमने उस पर OTP इंट्रोड्यूस करवाया। हमने चेक्स ऐसे अप्लाई कर दिए कि जिसके बाद अब हमारा राइडर जो है वो बहुत हद तक, आई एम नॉट सेइंग इट्स 100% काइंड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट काइंड ऑफ अ जर्नी, बट इट इज़ यू कैन से 80 to 90% अ वेरी फुल प्रूफ काइंड ऑफ अ जर्नी नाउ, कि जहाँ पे कस्टमर को एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि कस्टमर इंगेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस के बेस पे आपकी चीज़ सेफ एंड साउंड पहुँचेगी। और अगर नहीं पहुँचेगी तो समबडी कैन लिसन टू यू, कम अंडरस्टैंड योर कंसर्न कि ये चीज़ गलत पहुँची है, सही पहुँची है, टूटी हुई पहुँची है, इसको कैसे हमने फैसिलिटेट करना है। बिल्कुल सही बात है आपकी। इट वाज अ मच नीडेड एफर्ट, मच नीडेड स्ट्रैटेजी ओटीपी से, या बिकॉज ओटीपी से ये इंश्योर होता है कि डेफिनेटली दैट द राइडर हैड अ कम्युनिकेशन विद द एंड यूजर कस्टमर, बिकॉज विदाउट दैट ओटीपी ही कैनॉट इवन डिलीवर इट और ही कैनॉट इवन रिटर्न द पार्सल। तो दैट वाज अ गुड स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेड बाय यू, योर टीम एंड योर कंपनी। We'll come to the next part. This part is very quite interesting. Normally, brand क्या करता है? Brand does this कि when they hand over the parcel to you, then they start measuring the time of the delivery. Then they start speaking about it कि ये देर से deliver हुआ या ये there were hiccups and everything. According to your experience, since when you dig into the issue, if any issue has been raised, I personally believe this कि brand order land होने के बाद एक जो अपने पास पार्सल रख के प्रोसेस को फास्ट कर सकता है, उस प्रोसेस को वो डिले करता है एंड देन वो एक्सपेक्ट करता है क्योंकि आउटसोर्स हुआ भी है लॉजिस्टिक्स वो जो मेरा गैप है उसको कवर करे। व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं कुछ बड़े ब्रांड्स के साथ काम करता हूँ, मैं नाम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करूँगा। उनके साथ यही सिनेरियो रहा व्हेन दे स्टार्टेड द जर्नी। तो जब भी उनकी कैंपेन चलती थी, जब भी उनकी डिस्काउंट्स ऑफर होती थी, तो बहुत बड़ा बैकलॉग बनता था, जो कि ऑपरेशनल कहीं ना ग्लिचेस होते थे, उनकी पैकेजिंग और बाकी सोल्यूशन में कहीं ना कहीं मसला आता था। और जब वो पैकेट हमें हैंड ओवर होता था फॉर मेजर सिटीज, तो टेक एटलीस्ट 3 to 4 days। अब आपको पता है कि ई-कॉमर्स इंडस्ट्री जब क्विक कॉमर्स पे चली गई है, अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मैंने अभी ऑर्डर किया तो घंटे भर मेरी बेल नॉक करेगा और पार्सल मेरे पास आ जाए। उस इन्वायरमेंट में जहाँ पे हम ओवरनाइट से हट के क्यू कॉमर्स पे आ गए हैं, वहाँ पे कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि मुझे बहुत क्विक रश डिलीवरी मिल रही होगी। अनफॉर्चुनेटली वो एक गैप ज़रूर था जिसपे कहीं ना कहीं हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता था और हमें सेट बैक पड़ता था, और फिर ब्रांड का बहुत ज़्यादा प्रेशर हमारी तरफ शिफ्ट होता था। उसको अब ब्रांड से भी काफ़ी बेहतर कर दिया। मार्केट में बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स आ गई जिसमें जिनको एक बहुत रिनाउंड नाम है, ऐसा कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ गई हुई जो इस प्रोसेस को, इस चीज़ों को उन्होंने बहुत ऑप्टिमाइज़ कर दिया है। वही ऑर्डर जो किसी एक वेयर हाउस से पहले निकलता था, अब उसको उन्होंने डिसेंट्रलाइज कर लिया, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में ओमनी को कहीं कनेक्ट करते हैं। तो हमने उसके मुताबिक अपने सिस्टम को भी स्केल अप किया। हमने कस्टमर को ये फैसिलिटेट किया कि आपका एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। जैसे हमारा पहला एक्सपीरियंस जो हुआ था जब हमने ये स्टार्ट किया ओमनी चैनल, तो इट वाज स्टार्टेड विद खाड़ी। तो खाड़ी का जब ये कोविड का मसला आया, उनकी रिटेल शॉप्स वगैरह बंद होगी, तब हमने पहली दफ़ा एक्सपेरिमेंट किया कि अपनी रिटेल शॉप्स को आप बंद रखें। अगर वहाँ पे ऐसा मसला है, वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, उनको अनएम्प्लॉय ना करें, आप ऑर्डर्स को डिसेंट्रलाइज कर दें। जिस सिटी का ऑर्डर आता है उसी जगह पे जाएंगे, वहाँ से पिक In order to ensure the efficiency of the parcel as well. True, बिल्कुल सही बात है। What do you think के Omni solution मार्केट में आने के बाद, speaking of one of the renowned Omni solution which is जिंको या किसी भी Omni solution के आने की वजह से ब्रांड और लॉजिस्टिक्स दोनों के एंड के ऊपर क्या बेहतरी हुई है? What have you noticed in your site? अच्छा, एक तो जैसे मैंने बताया कि डिसेंट्रलाइज करने से जो लोड था वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। और जहाँ तक हमारे एंड का ताल्लुक है, जिनको जैसा कि बहुत सारी और कंपनीज मार्केट में काम कर, जैसे स्मार्ट लेन और बहुत सारी ऐसे हैं, उनके आने से ये हुआ कि जो पहले एक ये अवेयरनेस दी थी कि जो लॉजिस्टिक कंपनीज मार्केट में काम कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, उनकी परफॉर्मेंस गेज करने के लिए डिफरेंट जो पैरामीटर हम नॉर्मली इशू करते हैं कि आपका टाइम कितना लग रहा है, आपकी कॉस्टिंग कितनी अच्छी है और आपकी रिटर्न मैनेजमेंट कितनी स्ट्रॉग है, उसके ऊपर इन प्रोडक्ट्स ने बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम किया। और अब वहाँ पे एक ऐसी वैल्यूएशन अवेलेबल है एंड शिपर के पास कि उसको डिसाइड करने में कोई मसला नहीं होता, कोई कबाहत नहीं होती है किन सिटीज़ में मुझे किन कोरियर कंपनीज को अपने साथ कनेक्ट करवाना। तो जिनको जैसी प्रोडक्ट ने मार्केट में बहुत ज़्यादा एक ईजी टू गो एनवायरनमेंट पैदा किया, जो कि पहले बहुत स्टेगनेंट था, बहुत ज़्यादा स्टबन था, उसको अंडरस्टैंड करना। और ई कॉमर्स एक नाइट मेयर की तरह की प्रेजेंट होता था कि आपको बहुत सारी एफर्ट करनी पड़ेगी। अब क्योंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी के बाद आपको बहुत ईजी टू यूज़ वो बन गया और आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को दोनों साइड पे आप बड़े अच्छे से गेज कर सकते हैं और उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसी की बेस पे आप नेक्स्ट डिसीजन पे कहीं जा सकते हैं। Fine, great. Since no, we have discussed the Omni. Now coming back to the problems. ठीक है, number one problem. देखिए, Jinko claims this and Omni solution से या Jinko से specially, after we had a conversation with them and the brands, हमें ये बात पता चली
कि यू नो दे आर क्रिएटिंग अ कस्टमर प्रोफाइल जिसमें यू विल गेट टू नो कि कौन सा कस्टमर यू नो एक्सेप्टेंस रेट कितनी है और उसका डिक्लाइनिंग रेट कितना है. देयर आर कस्टमर्स दोज प्लेस ऑर्डर दे डोंट रिसीव इट. अब यू गेटिंग द पॉइंट. तो इस तरह का डाटा तो लॉजिस्टिक्स के पास भी था और है. तो लॉजिस्टिक्स या हम ट्रैक्स की बात करते हैं तो ट्रैक्स की सिंस इन हाउस सर्विसेज है. लुक, you want to generate the revenue, you want to bring more parcels on board, understood, but in the process you will only be able to retain or sustain the business or client when you know their return rate is in single number and you know the percentage of delivery is higher. तो उसके लिए you can also create, I mean, since if somebody is with Jinko it's fine, if somebody is not with Jinko, does Track acknowledges this, or does Track want to work on this, that you know you create a customer profile on yourself as soon as you pick the parcel, or you know there is some sort of intimation कि आप 100 पार्सल पिक करने के लिए गए, उनमें से 10 पार्सल आपको पता है कि मोस्ट लाइकली दिस इज द चांस, देयर इज द चांस दैट ये रिटर्न होगा. लेकिन वो एक प्रोसेस है कि आपने डिस्पाइट रिटर्न हो या चार्ज हो, यू चार्ज, तो आप उसको पिक करके लेके आ जाते हैं. तो व्हाट इज योर इनिशिएटिव एंड व्हाट इज योर थॉट ऑन दैट? जी बिल्कुल उमैर, इस पे हमने बहुत अग्रेसिव काम किया और जिनको के साथ ही पैरेलल हम लोग अपनी भी कुछ इन हाउस एक्टिविटीज़ पे काम कर रहे थे. इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं. एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया कि अब हम एज ए बिजनेस पार्टनर चलेंगे तो हम ग्रो कर सकते हैं. बिल्कुल. तो हमने जब इस आइडियोलॉजी पे काम किया तो हमने ये किया कि हमने कस्टमर को कुछ ऐसी फैसिलिटेशन ऑन अर्ली एज दे दी जहाँ पे वो खुद डिसाइड कर सकता है कि आइदर दिस पैकेट बिलोंग्स टू टैग्स फॉर अ सक्सेसफुल काइंड ऑफ अ डिलीवरी काइंड ऑफ अ स्टाफ और नॉट. हमने उसमें क्या किया कि पहला हमने काम ये किया कि हमने अपने पास एक फॉल्टी या फेक और आपका एक ब्लॉक लिस्टेड यूज़र्स की कोई डेटाबेस बनाई है ओवरऑल, क्योंकि रोज़ हम माशाल्लाह कोई 40-50,000 पार्सल को कहीं ना कहीं प्रोसेस पूरे पाकिस्तान में कर रहे होते हैं, नेशन वाइड कर रहे होते हैं. तो उसमें हमने क्या किया कि हमारे पास एक पूरी डेटाबेस है. अब उस क्यूमुलेटिव डेटाबेस में मेरे पास कुछ ऐसे कस्टमर भी होंगे जिनकी ट्रैक रिकॉर्ड हिस्ट्री इज़ नॉट वेरी गुड. Like for instance, if somebody is giving me in last 15 days 5 parcel and the success ratio of acceptance is less than 50%, तो उसको मैं अपनी ब्लैक लिस्ट कैटेगरी में फॉल इन करवाता हूँ. जब आपका कस्टमर, जब मेरा शिपर जो है वो बुकिंग करने जाता है, उसके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है थ्रू API, थ्रू प्लग इन एंड इवन थ्रू मैनुअल बुकिंग की जब वो उसका फ़ोन नंबर आइडेंटिफाई करता है तो मेरा सिस्टम को पॉपअप करता है कि जनाब ये जो बंदा है ये एज पर द ओवरऑल डेटाबेस इट इज़ अ लिटिल बिट डिलेड और मे बी समबडी हु इज़ नॉट सो मच इंटरेस्टेड टू बाय समथिंग. तो हम उसको उसी लेवल पे आइडेंटिफाई करते ताकि कस्टमर उनको दोबारा कॉल करके या प्री पेमेंट की बेस पे ऑर्डर को प्रोसेस कर सके. एक तो हमने ये वाला काम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. दूसरा हमने ये काम शुरू किया कि जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती है वो नॉर्मली चक नंबर, PO नंबर इन रेसिपी डिलीवर नहीं करते. जैसे हमने शुरू में बताया कि जब पैकेट मेरे पास मेरे विसिनिटी में पहुंच जाता है तो मेरी टिकट कट जाती है. आई एम लायबल टू चार्ज टू द कस्टमर. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसका पूरा एक कीवर्ड एनालिसिस बनाया और कीवर्ड की पूरी एक 2000 नंबर्स की मैंने एक पूरी डेटाबेस बनाई हुई जिसमें आपको PO नंबर डालेंगे, आप चक नंबर डालेंगे, आप तहसील डालेंगे तो वो सिस्टम जो है उसको एक दफ़ा पॉपअप करेगा. दिस एड्रेस इज़ नॉट बिलोंग्स टू द मेन सिटीज़, but still you can talk with your key account resource, with your salesperson into tracks to just identify either this parcel is deliverable or not. तो ये दो चेक्स हमने बहुत ज़्यादा उसमें एम्फेसाइज किया चीज़ों पे. दूसरा जो रिटर्न रेशियो में थोड़ा सा सिर्फ ब्रांड के एंड पे थोड़ा बताना चाहूँगा कि रिटर्न रेशियो में बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. रिटर्न रेशियो जैसे हमने पहले जिक्र किया कि पहला स्टेप ये है कि अगर ब्रांड बहुत दिनों के बाद एक ऑर्डर प्रोसेस करता है मेजर सिटी जिसको हम किया लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद भी कहते हैं, वहाँ पे एक्सेस बहुत ईजी है. कोई भी रिसोर्स जो है वो मार्केट में जाके प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं. अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर 4 से 5 दिनों बाद ऑर्डर निकालेंगे तो वो कहीं ना कहीं मसला आएगा. दूसरा मसला ये कि अभी भी पाकिस्तान में बहुत सारे ब्रांड जो है वो ऑटो कन्फर्मेशन पे ऑर्डर्स को प्रोसेस, इट्स अ टेयरिंग काइंड ऑफ जॉब, आई कैन अंडरस्टैंड. लेकिन अगर कहीं पे हम वहाँ पे कोई AI बेस का कोई एल्गोरिथम डिफाइन करते हैं कि जहाँ पे हम उसकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस कर सकें तो आई एम डैम श्योर कि हम बहुत सारी जो रिटर्न रेशियो है उसको कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं. अब जहाँ तक बात आती है कि हमने और जिनको के साथ अलावा हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर ये कह रहे हैं हमने पूरा बैकएंड में एक BI का पूरा सिस्टम डेवलप किया हुआ है जो कि हम उन कस्टमर्स को जो कि जिनको की तरह की प्रोडक्ट को अफोर्ड नहीं कर सकते या उस लेवल पे काम नहीं कर सकते, हम उनको पूरी रिपोर्टिंग देते हैं, पूरी एवेल्यूएशन देते हैं मंथली, वीकली, वट एवर काइंड ऑफ टाइम स्पेंड डिसाइड, जिसमें हम उनको रिपोर्ट पे ये बताते हैं कि आपकी जो रिटर्न रेशियो आ रही है वो किस वजह से आ रही है, किन एरियाज़ में जा रही है, किन सेगमेंट्स में आ रही है, उसकी रीजनिंग क्या है. जैसे एक बहुत बड़ा रीज़न ओवरऑल अगर मैं अपने बिजनेस का देखूँ तो वहाँ पर ये आता है जहाँ पे कस्टमर रिफ्यूज़ बाय कस्टमर. अब रिफ्यूज़ बाय कस्टमर की एल्गोरिदम लॉजिक ये है कि पाकिस्तान में आज भी जो कि ई-कॉमर्स का बहुत बड़ा शेयर 80-85% शेयर जो है, अगेन मेरे ख्याल से 90% शेयर होगा वो COD पे. अब COD is a for granted kind of a thing. I don't have any kind of a stake if I order something from XYZ kind of a brand. Once the orders comes to my doorstep,
इफ़ आई लाइक इट मैं उसको ले लूँगा, अगर मैं नहीं पसंद आएगा मुझे नहीं चाहिए, वापस ले दें। तो वो पूरी जर्नी है जिसकी कॉस्ट भी है, जिसमें मार्केटिंग भी ब्रांड की है, तो ये वाला फैक्टर हमें कहीं ना कहीं आज भी हिट करता है। और मेरे पूरी की पूरी एवेल्युएशन में तकरीबन कोई 73% जो रेशो मेरी रिटर्न की आती है वो इसी वजह से आती है जहाँ में कस्टमर का रिफ्यूज़ का रेशो बहुत ज़्यादा था। उसमें भी हमने भी चेक्स आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि जहाँ पे हमारी पूरी वर्किंग करने के बाद भी हमें लगता है कि पार्सल डिलीवर नहीं हो सकता OTP और तमाम चेक्स के बावजूद, फिर भी हम ब्रांड को एक ऑफर करते हैं कि दे हैव दिस प्रॉब्लम बिकॉज दे आर प्रोडक्ट ऑनर, दे माइट बी इन अ बेटर पोजीशन टू गिव अ डिस्काउंट, गिव देम अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोडक्ट, व्हाई दे वांट टू कैंसिल समथिंग। उसके बाद अगर कस्टमर हमें दोबारा भी रिटर्न की रिक्वेस्ट करता है हम वो करते हैं। और हम बड़े कॉन्फिडेंटली कहते हैं हम पाकिस्तान की शायद वो वाहिद कंपनी होगी जो हम ये कस्टमर को बार बार ये बात समझाते हैं कि आप हमें 20 दफ़ा भी कहेंगे रिटर्न करने के लिए हम बिल्कुल करेंगे, बट इट शुड बी ऑन अ पॉजिटिव नोट। अगर आप ऑटो पे करते जाएंगे तो उसका बेनिफिट नहीं होगा। आप कॉल करें, कस्टमर को कन्विंस करें, हमें बताएं, हम फिर भी डिलीवर करेंगे। तो ये चेक्स हमने Fair enough, fair enough. One of the biggest reason which we face these days is also this. You know, personally, this is my opinion as well. अभी आपके लिए और आपकी कंपनी के लिए, you know, it's very easy to find a solution to that. What I was thinking is this, कि far-fetched areas को ले जाके आप फॉल करवाते हैं किसी ना किसी near by bigger city में. Fine. लेकिन you know once the brand dispatch the parcel to you and you pick it and you are ready to deliver it, अब उस एरिया का you know जब वहाँ पार्सल पहुँचता है तो if it's 30, 40, 50 किलोमीटर्स we understand एक पार्सल के लिए कोई वहाँ नहीं जाएगा। तो लेकिन आप पार्सल उठा के ले गए, once you pick the parcel तो then it's your responsibility to deliver it. Now what happens is this के I'm not talking about tracks, I'm talking about you know a generic issue कि logistics ये बात बोलती है you know either you come and pick it up, और अब क्लाइंट के लिए ये मसला होता है कि अगर 1000 रुपये का उसने मंगवाया है एक पार्सल और वो 1500 रुपये 2000 रुपये का पेट्रोल लगा के तो कभी भी पिक करने नहीं आएगा। अच्छा, व्हेन यू से यू पे द एक्स्ट्रा मनी, यू आस्क द एंड यूजर टू पे यू द एक्स्ट्रा मनी, ही और शी सेज दिस के यू नो इट्स ब्रांड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे गो क्राइंग टू द ब्रांड के यू नो वी आर एलिजिबल फॉर अ फ्री शिपिंग एंड देन व्हाई डू वी हैव टू पे फॉर दैट। यू आर राइट एज वेल, बट वंस यू हैव पिक्ड द पार्सल and you know it's not easy to identify until you know we speak to you or we speak to your agent, then we find out that this is a far-fetched area. What I was thinking is this, ये प्रॉब्लम क्यों होती है? नंबर 1, नंबर 2, अगर यू नो फॉर एग्जांपल एक ABC एरिया है, सबसे पहले इफ आई सेलेक्ट गुजरात, अच्छा मैंने गुजरात सेलेक्ट कर लिया, या मैंने उसकी यू नो कोई उसकी अगर पर्टिकुलर प्लेस एरिया का नाम अगर हम डालते हैं तो यू नो देयर शुड बी सर्टेन चेक्स ऐसे होने चाहिए कि अगर हम उस विसिनिटी से बाहर निकल रहे हैं तो ऑर्डर बुक करने के टाइम ही हमें उस विसिनिटी के एक्स्ट्रा चार्ज वहाँ पे डल जाए, ताकि ब्रांड एक्स्ट्रा पे कर दे और आपके एंड के ऊपर जो आपका राइडर है वो जाके 40 किलोमीटर है 20 किलोमीटर है वो डिलीवर करके आ जाए। बिकॉज ये प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती जा रही है कि अगर हम TCS की बात करते हैं या हम TCS जैसी 1-2 कंपनीज की बात करते हैं जो कि बलोचिस्तान में और जो कि कश्मीर में और फार फेस्ट एरियाज में भी जाके डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है उनका वॉल्यूम आपसे बड़ा होगा और बिजनेस में आपसे पहले हैं शायद, यू नो दे माइट बी स्ट्रॉन्ग इन दोज एरियाज, इट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, वी अंडरस्टैंड दैट, बट यू नो आप जैसी लॉजिस्टिक्स और आप लोग जब पार्सल उठा के लेके जा रहे हैं और उस फार फेस्ट एरिया में डिलीवर नहीं कर रहे एंड उसका रिटर्न रेशो उन पार्सल्स की ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी डिक्लाइन आता है। तो यू नो यू व्हाट इनिशिएटिव आर यू टेकिंग अबाउट इट एंड व्हाट इज एक्चुअली योर से अबाउट दिस टाइप ऑफ शिपमेंट्स? अच्छा मैन, हमारा जो ओवरऑल बिजनेस में था कि हमारा चूँकि बैकएंड में पूरा BI का एक पूरा इंटरफेस हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उस पर वर्किंग कर रहे होते हैं और कॉन्स्टेंटली बिजनेस एनालिसिस में हम लगे होते हैं कि इसको कैसे बेहतर किया जाए। इसके हम 2-3 चीज़ें एस्पेक्ट्स पे हम काम करें। पहले तो बताता हूँ कि हमारा जो ओवरऑल बिजनेस है उसमें हमने जब उसको एवेल्युएट किया तो इट इज़ लेस देन 1% विच कम्स इनटू द NSA और OSA। NSA इज नॉन सर्विस एरिया एंड आउट ऑफ सर्विस एरिया। तो हमारा लेस देन 1% है जहाँ पे हमें ये टारगेटेड कहीं मसला फेस करना पड़ता है। अब इसके 2 हल हमने निकाले। जो एक शॉर्ट टर्म हमने स्ट्रेटेजी ये लगाई, जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें हमने पूरा एक कीवर्ड का एक पोर्टफोलियो को एल्गोरिथम के साथ बाइंड किया हुआ है। जैसे आपने बताया कि गुजरात, क्योंकि मेरी जब मेरा सिस्टम उसको रीड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम द डेस्टिनेशन, इट्स गुजरात, इट्स ऑल डन, इट कम्स ऑन द बैक साइड विद द नेम ऑफ द तहसील, गांव, जो भी नाम लिखा हुआ है, उस नाम को जब वो रीड करता है तो मेरा सिस्टम वहाँ पे उसको पॉपअप करता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। लेकिन अगर वहाँ से भी कहीं ना कहीं निकल जाए तो ये हम शॉर्ट टाइम में ये किया था कि हमने वो डेटाबेस बना दी ताकि कस्टमर को फैसिलिटेट किया जाए। ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट इट एक्जैक्टली। लेकिन ऑन लॉन्गर रन क्योंकि ये भी चीज़ इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि जब गुजरात मिल जाएगा तो मेरा सिस्टम उसको कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर जाएगा। यस डेफिनेटली पॉपअप है, वो कहता है यस इट्स ऑल डन, कस्टमर ने कहा। बट इफ यू डू डिटेक्ट इट देन यू ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन फॉर इट बिफोर के वो
उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए. एग्जैक्ट. Once it reaches the destination, then what is your अच्छा, उसके बाद हमारे 2 सिनेरियोस होते हैं. जब उस डेस्टिनेशन पे पहुँचता है, गुजरात में जब पहुँच जाता है, तो वहाँ पे वो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और वो आइडेंटिफाई करने के बाद वो रेक्टिफाई करते हैं कि जिस जगह पे जा रहा है, आइदर इट हमारा जो रेडियस होता है, इट कैन बी अप टू 5 to 10 किलोमीटर, जहाँ पे हम उसको फैसिलिटेट कर देते हैं. उससे जब आगे जाता है तो वहाँ पे हमें स्पेशल कोई ना कोई अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं. उस पर भी हम डायरेक्टली जो है वो ब्रांड को पहले पिच नहीं करते. पहले हम जो कंसाइनी है उसको कांटेक्ट करें, जो बंदा पार्सल मंगवा रहा because वो लोग used to भी होते हैं ना, to be honest. Yes. बिल्कुल. उनको बताते हैं कि आपका जो है इस जगह से डिस्टेंस पे है. 2 ऑप्शन है. एक ऑप्शन ये है कि आप हमारे ऑफिस से सेल्फ कलेक्ट कर लें. अगर आप उसके लिए वाइबल नहीं है तो हम इसकी डिलीवरी के लिए ब्रांड से एक दफा एडवाइस ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कॉस्टिंग की बात करें, दिस इज ऑफ कोर्स Because you cannot ask तो money हम on ब्रांड behalf से of the बात brand. करते Yes. हैं. ब्रांड अगर हमें कंफर्म करता है तो हम वो, लेकिन ये मैंने बताया ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी थी और शॉर्ट टर्म शॉर्ट कमिंग्स थी. अब इसका लॉन्गर रन पे हम क्या कर रहे हैं, हम सिस्टम में ये प्रोविजन डाल रहे हैं कि जब कस्टमर किसी भी जगह का कोई एड्रेस पिन करे, तो पिन करने के बाद ऑटोमेटिकली उस एड्रेस की हम गूगल कोऑर्डिनेट्स कहीं क्लोजेस्ट कोऑर्डिनेट्स को कहीं सिस्टम में बाइंड कर, ताकि राइडर की ऐप पे जब वो पुश हो सुबह, उसको पता लग जाए कि ये इन्फॉर्मेशन, या जब वो बुक कर रहा होता है उसी वक्त कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई, जब वो गांव का नाम लिखेगा तो वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा. अभी भी पाकिस्तान में गूगल इतना एक्टिवली शायद नहीं कर रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम नियरेस्ट पोजीशन पहुंच जाएंगे, तो वहाँ पे वो आइडेंटिफाई कर देगा. जैसे आपने एडवाइस की है, हम उसी पे काम कर रहे हैं कि वो वहीं पे बता दे कि जनाब ये गुजरात से हट के ये कोई 20 किलोमीटर से आगे का डिस्टेंस है. आइडियली you are supposed to pay us X kind of a addition to the specific kind of a cost. If you are okay, just book it up. I'm impressed. So that means you did find a solution to it and you're working on it. It's an ongoing process. It's an ongoing strategy. Definitely इस तरह के issues business का कम percentage होते हैं, focus भी कम होता है, लेकिन you took it as a challenge and you're working on it and it's good, you know, at least सुनने And by को the तो way, sorry to interrupt you. सबसे important बात ये है कि हमारा ये एक्सपीरियंस ये भी कहता है कि जो फॉर-फेच एरिया के ऑर्डर्स होते हैं उसके रिटर्न होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि वहाँ फैसिलिटेशन नहीं है, बड़ा बैंड वहाँ पे Need है. अवेलेबल नहीं. Yes, वो बिल्कुल, 100% yes, नीड है. yes. उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. उसमें इसलिए लेना ही अब लेना हम है. इस पे काम कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, पोस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को शायद कहीं कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सका, जिस पर थोड़ा सा उनको कहीं सेटबैक पड़ा. हम वही कोशिश कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कहीं ना कहीं पेनिट्रेशन साथ साथ बढ़ाते जाएं, ताकि एंड यूजर जो ऐसी जगहों पे अवेलेबल, जो कि 100% गारंटीड है कि प्रोडक्ट वो लेगा ही लेगा, उसको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट बेहतर And to be honest, I've noticed this. I've combed through the data and you know I've found out this कि जो fast fetch areas होते हैं, these people pay you in advance as well. They don't mind even if you call them, you tell them, they will pay you because उनकी need है, वहाँ पे कोई है ही नहीं, and you know this is the only way of them to connect themselves with the brand. Good thing this has been addressed. Now coming back to the another problem. One of the major issues we face these days with logistics is this, might be not faced with tracks, कि in transit. And now in transit becomes, you know, an issue. In transit becomes, you know, a brand को समझ नहीं आ रही होती है what is happening in transit, because एक पार्सल 10 पार्सल आप उठा के लेके जा रहे हैं, वो डेस्टिनेशन पे जा रहा है, वो भी इन ट्रांजिट में फॉल कर रहा है, जो वहाँ से 10 आ रहा है वो भी इन ट्रांजिट में फॉल कर रहा है. तो यू नो व्हेन ब्रांड लुक्स इनटू द सॉफ्टवेयर, ब्रांड लुक्स इनटू द डैशबोर्ड, इन ट्रांजिट की क्या स्ट्रैटेजी है? आई कुडंट अंडरस्टैंड माई सेल्फ एज वेल कि आप इन ट्रांजिट में अगर इतना लोड डाल देंगे तो ब्रांड को अपनी विजिबिलिटी नहीं पता चल रही होती कि मेरा आने वाला माल कितना है, मेरा जाने वाला माल कितना है. बिल्कुल ऐसे. इन ट्रांजिट का जो इन सिंपल वर्ड में डेफिनेशन तो ये है कि आपका पैकेट जब हमारी लास्ट माइल पे प्रोसेस में निकलता है, सिटी टू सिटी या पोजीशन टू पोजीशन या डेस्टिनेशन जाता है, तो उस टाइम स्पैन को हम कहीं ना कहीं इन ट्रांजिट में कवर करते हैं. और ये गैप ऑनेस्टली इंडस्ट्री में भी थोड़ा सा है, जिसमें बहुत ज़्यादा रैपिडली काम कर रहे हैं. इस पर हम जब अब जितने भी नए ब्रांड्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, उसमें हम लोग इस स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं कि हमारा ओवरऑल जो टैट है फॉर द डिलीवरी एंड फॉर द रिटर्न, इट शुड बी डिफाइंड. क्योंकि पहले ये ओपन एंडेड था, तो शायद हमें भी थोड़ी लेवरेज मिल जाती थी, ब्रांड का भी कॉन्शियसनेस थोड़ा सा कम होता था. अब चूँकि बिजनेस बहुत ज़्यादा कंपटीशन पे आ गया हुआ है, ब्रांड के लिए भी कंसर्न है कि पैकेट ऑन टाइम पहुँचे और ऑन टाइम वापस आए, वो सारी चीज़ें की जाए. तो हमने इसके लिए कुछ मिडिल टीयर चेक्स लगा दिए गए. उन चेक्स में ये है कि हमारी जो कमिटमेंट होती है ब्रांड के साथ, उसमें हम प्रॉपर टैग डिफाइन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ कि हम जब यहाँ से लाहौर से, जैसे लाहौर में बैठे हैं, लाहौर से जो पैकेट निकलता है, तो हम उनको एवरेज बताते हैं कि एक्सटेंसिव लेवल पे जहाँ पे हमारा पैकेट ये पहुँचेगा, इसके जाने में कितना टाइम लगेगा, और फिर वहाँ से अगर वो रिटर्न होता है, क्योंकि इन ट्रांजिट को हम इसका भी डिफाइन करते हैं. मेरा एक पैकेट जो लाहौर से उठ के किसी एक्स पॉइंट पे जाता है, जिसमें आइडियली मेरे पहुँचने में 2 से 3 दिन लग रहे हैं, उसके बाद वो 3 दिनों में वापस आएगा. अब जब वो उसको वापस पहुँचता है, वो पहुँचना 15 दिनों में. कस्टमर बहुत कन्फ्यूज़ होता है कि क्या वजह. उसके पीछे हम, जैसे मैंने आपको सर्च किया कि इस पर पूरी एक जर्नी है. हमारा पैकेट वहाँ पहुँचा, वो डिलीवरी के लिए गया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, कम्युनिकेशन, देन कम्स टू द ब्रांड, दे आर सपोज टू रिस्पॉन्ड बैक इन 24 to 48 आवर्स कि इसको आपने डिलीवर करना है, रीअटेम्प्ट करना है. तो 5-6 दिन का इन बिटवीन भी कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती है. लेकिन जो पहली वाली ऑप्टिमाइजेशन है, उस पर बहुत एग्रेसिव काम हो रहा है कि यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक पहुँचने में जो टाइम है उसको कितना शॉर्ट किया जा सकता है. उसके लिए ऑफकोर्स व्हीकल की ऑप्टिमाइजेशन पे काम करने की जरूरत है, उसको हम बड़ा ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं.
हम लोग फ्यूचरिस्टिक पार्ट ये भी कर रहे हैं कि आपकी जो, क्योंकि हमारी जब व्हीकल्स मूव होती है तो वो मुख्तलिफ डेस्टिनेशन को टच करते हुए जाते हैं। जैसे लाहौर से कराची जा रहा है तो लाहौर से मुल्तान को भी करेगा, जमीया खान करेगा, और वो आगे जा रहा होगा। एक गाड़ी हमारी डायरेक्टली जा रही होगी तो हम उसको डिसाइड करते हैं कि किसके मुताबिक जाना है। जब वो जा रहा होता है तो हर स्टेशन पर जब वो गाड़ी पहुँचेगी तो वहाँ पर हम RFID पे काम करने जा रहे हैं। हम उन चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि हर जगह पर स्कैनिंग टाइम So स्टैम्प्स status, multiple status update होते रहेंगे. ताकि You इन exactly know the divide journey करें। where is Yes. your true. Fair enough. You know, we addressed the we raised the query with you. We raised the problem with you. You addressed it and you discussed it and you gave a solution to it. Now it was an understanding. It was understood before. Okay, you pick my parcel. ठीक है. I am eligible to pay you. अगर आप डिलीवर करते हैं 100 रुपया मुझे आपको देने, अगर आप मुझे रिटर्न करते हैं वो पार्सल तो भी मुझे आपको 100 रुपया देने। नाउ देयर इज न्यू थिंग इन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द मार्केट बाय द लॉजिस्टिक्स। वो ये है कि 100 रुपये का पार्सल आप मेरा ले गए, डिलीवर हो गया तो यू विल चार्ज मी 100 रुपीज़ एंड इफ़ यू विल रिटर्न इट देन आई हैव टू पे यू 200। 100 रुपया ले जाने का, 100 रुपया वापस लाने का। नाउ डेफिनेटली बड़े ब्रांड्स के साथ ये नहीं हो रहा है, पर छोटे ब्रांड को हम बड़ा ही नहीं होने देंगे। जब उसके ऊपर इतना लॉस डाल देंगे वो तो बंद हो जाएगा स्टार्टअप। So this has been introduced by the logistics. Yeah, every day you hear new things. I understand the problems, challenging. It's not easy. देखें, वो हमें आपके साथ डील करने में बहुत आसानी होती है, लेकिन आपको एक राइडर उस लेवल पे डील करने के लिए, और उस सब कम्युनिटी की एक अपनी प्रॉब्लम्स है, उस कम्युनिटी के अपने चैलेंजेस है, बट this thing is not acceptable since you are part of the logistics consortium as well. I mean, we need to find out, figure it out, कौन लोग हैं, ये कौन कर रहे हैं, and you know, definitely I think this is not acceptable. उमर, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये बिल्कुल एक फिनोमेना था इंडस्ट्री में, और अभी भी कहीं ना कहीं है। और आपकी बात से मैं बिल्कुल इसको सेकंड करूँगा, क्योंकि हम अपनी जर्नी को समझते हैं कि टैक्स इज जस्ट अ 6 years old kind of a company, and we can understand the pain area of a startup because the economic condition, the financial pressure all over the side is very difficult to just sustain somewhere around. तो हम कोशिश ये करते हैं कि स्टार्टअप्स को हम कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करें, और हम इस पर बहुत ज़्यादा इंकरेज करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं। क्या पता है कि कहीं ना कहीं कॉस्टिंग फैक्टर भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ हो रही हैं, फ्यूल प्राइसिंग और तमाम चीज़ों का कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आ रहा है। तो ये वाला फिनोमेना इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है, बहुत सारी कंपनीज पे काम करें, लेकिन हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम ये वाला जो इम्पैक्ट है ये हम बहुत सारी कंपनीज में पास ऑन नहीं कर रहे। हम यही चाहते हैं कि जो बंदा आज को, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत रिनाउंड मार्केट प्लेस है लाम। They started their journey with us almost 5 years back. When they started, their daily number of parcel was just 10 to 15 parcels somewhere around. And now, alhamdulillah, they are in thousands of parcels. So we started this journey together. हमने वहाँ से चीज़ सीखी कि हमने उन्होंने तकरीबन आसपास में इकट्ठी जर्नी को रन किया। तो वहाँ पे अगर उस वक्त मैं ये उनको पर ये इन्फोर्स कर देता, ये इम्पोज कर देता, तो शायद मैं आज इकट्ठे हम यहाँ पे इकट्ठे सक्सेसफुल जर्नी को ज्वाइन ना कर सकते। तो जो स्टार्टअप है उसको कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करने की जरूरत है। वन वे कॉस्ट है कि कॉस्ट का फैक्टर तो ऐसे कैलकुलेट होता है, जो गाड़ी या जो बाइक मेरे घर से ऑफिस से निकल के किसी जगह पर डिलीवरी करने जा रही है और वो डिलीवर करने जाती है वापस आ रही है, तो इट्स अ कॉस्ट फैक्टर ऑन बोथ साइड्स। लेकिन ये है कि हमारी जो कॉस्ट की जो फैक्टर्स हम लोग जो वर्किंग करते हैं, जो बहुत सारी मेजर कंपनीज वर्किंग करते हैं, जो हम कॉस्ट ब्रांड को ऑफर करते हैं, उसमें इस दोनों आने जाने की कॉस्ट शामिल होती है, क्योंकि इट्स नॉट अ सिंगल पार्सल, इट्स अ क्लब ऑफ द होल काइंड ऑफ अ बकेट, जहाँ पे हम कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी अभी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कहीं ना कहीं इसको ऐड ऑन करें, लेकिन हम पर्सनली इसको इंकरेज नहीं करते कि इसको कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, और इसका मार्जिन अवेलेबल होता है कि जहाँ पर इसको प्लान करके आप इसको लेके चल सकते हैं। तो ये सब Fair enough. Good, you addressed it. You know, there is one more thing which I would like to discuss, and I won't like to accept this as well. I've seen over the period of time working with Trax, you know, we both of us, we are service provider. आपका रिटेंशन रेट, आई हैव नोटिस दिस थिंग, यू नो, जिधर भी आप गए, जहाँ भी आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, इट वाज नेवर यू बिकॉज ऑफ यू और योर कंपनी लेफ्ट ट्रैक्स द ब्रांड। ठीक है, योर रिटेंशन रेट इज़ वेरी गुड, सो वी वुड लाइक यू टू टेल अस व्हाट इज़ योर रिटेंशन रेट, डिलीवरी रेट आपका क्या है, आपका रिटर्न रेट आपका क्या है, क्या चैलेंजेस जो हैं आपको क्लाइंट ऑनबोर्डिंग में आते हैं, एंड क्या ऐसा आप कर रहे हैं कि पीपल शुड अंडरस्टैंड दिस के quality matters a lot rather than you find a logistics जिसको आप 5, 10, 15, 20 रुपये कम दे के और फिर जो है ना इवेंचुअली अपने ई कॉमर्स के एक्सपेंसेस भी बढ़ा लो, बिकॉज कम पैसों पे क्वालिटी नहीं हो सकती है। वो 3 बार नहीं लेके जाएगा, वो 10 रुपये कम में ले जाएगा, लेकिन वो घुमा फिरा के आपको ला के दे देगा। बिल्कुल बैर, ये सबसे अपने जो क्वेश्चन पूछा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ओवरऑल ई कॉमर्स की जर्नी को डिफाइन करता है, और कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को वैल्यूएट करता है कि इसको सस्टेनेबल मॉडल बनाना है या इसको हमने कहीं ना कहीं ख़त्म कर देना या बंद कर देना। तो ये बिल्कुल चैलेंजिंग पार्ट है। हमारी जो डिलीवरी रेशो है इट्स अलहमदिल्ला 90%,
एज अ ओवरऑल काइंड ऑफ बिजनेस टोटली, जिसमें स्मॉल स्केल कस्टमर्स भी हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी है जो कि शायद फिक्शियस होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट फेस करना पड़ता है, और प्लस बड़े ब्रांड्स को भी। तो अभी जो मार्केट के जो नॉर्म चल रही हैं, इट कम्स अराउंड 11 to 15% प्लस माइनस, जहाँ पे ओवरऑल बिजनेस इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फॉल कर रहा होता है। हमने इसको कोई 90%, कोई 89-90 इस पे में हमें कहीं फॉल ब्रैकेट में ब्लॉक किया हुआ है, जहाँ पे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पार्ट है, जहाँ पे रिटर्न रेशो को मैनेज करना, सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम है। उसमें बहुत बड़ी वजह ये, जैसे मैं अगर इंडस्ट्री वाइज आपको बताना चाहूँ, शू इंडस्ट्री आज भी पाकिस्तान में जब हम बात करते हैं, तो आज भी मुझे यहाँ बहुत से लोगों को यूके और यूएसए के साइज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। व्हेन यू आस्क्ड कस्टमर सर्विसेज गाय जस्ट आज कि आपका जूते का साइज़ क्या है, तो वो कहते हैं 8, 9, 10 में से कुछ है, और वो कहीं मिक्स एंड मैच करते हैं। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द इन्फॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट। ये पहला स्टेप है जहाँ पे ई कॉमर्स से जर्नी स्टार्ट हो रही है। जो ब्रांड अपनी इन्फॉर्मेशन को पुट इन कर रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कस्टमर को एक ईज़ मिल जाए, उसको अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। पहला स्टेप तो ये, जहाँ पे हम रिटर्न रेशो को बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद जब वो प्रोडक्ट आ जाती है, तो फिर उसकी जर्नी कितनी एफिशिएंट है, कितनी प्रोडक्टिव है, कितनी क्विकली आप उसको कस्टमर तक पहुँचा देते हैं, और कस्टमर से कितना आप एंगेज रहते हैं, ये वो फैक्टर है जहाँ पे आप चीज़ों को कहीं ना कहीं मैनेज कर सकते हैं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रोडक्ट की जर्नी जब स्टार्ट होती है, तो प्रोडक्ट की पैकेजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रिटिकल काइंड ऑफ है। खास तौर पे जो आपकी ऐसी कोई प्रोडक्ट्स हैं जो कि बॉक्स पैक में है, जिसके कॉर्नर एजेस हैं, जिसको बहुत शार्प एजेस कह सकते हैं, वो चीज़ें जो है जब उसकी मूवमेंट होती है, अगर वो ए पॉइंट से बी पे जाए में कहीं वो डैमेज हो गई है या वो खुल गई है, कोई ऐसा मसला हो गया, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना, इट्स अ वेरी टेयरिंग काइंड ऑफ स्टफ। तो ये वाले फैक्टर है जिसकी वजह से ओवरऑल रिटर्न रेशो कहीं ना कहीं वेरिएट कर रही होती है। तो हमारा बड़ा इस पर स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज है, और हम कोशिश ये करते हैं कि कस्टमर के साथ हम बहुत स्ट्रांगली अलाइंड रहें, और ऐसी कम्युनिकेशन रखें कि एंड कस्टमर जिसको प्रोडक्ट वो चाहिए, उसको कहीं टाइम डिले को फेस ना करना पड़े। क्योंकि अगर उसको हम मिनिमाइज़ कर लेंगे, उसको कहीं कंट्रोल कर लेंगे, तो अल्टीमेटली जर्नी एक आपकी बहुत बेहतर डेवलप हो जाएगी। क्योंकि आपका एक कस्टमर जो आपका ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है, जो 10 जगह बैठ के आपके ब्रांड की, उसको ये कंपनी की कहीं ना कहीं तारीफ करते हैं, तो वो कलेक्टिव एफर्ट के साथ चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। कि अभी भी जो रिटर्न रेशो का बहुत ज़्यादा जो गैप आता है, जो इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से पहले बताया, कि पहली वजह तो ये है कि हम ऑर्डर कन्फर्मेशन में थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकें। इट्स नॉट समथिंग टू जस्ट इनिशिएट द मैनुअल कॉल्स काइंड ऑफ स्टफ, इट शुड बी सम मैकेनिज्म जहाँ पे कस्टमर कुछ ना कुछ स्टेक ले ले, उससे कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाए। एक तो ये हम काम कर लें। दूसरा ये है कि जो ब्रांड के एंड पे है, ब्रांड जब एक्जीक्यूट करता है और हमें हैंड ओवर करता है, उसको थोड़ा बेहतर कर ले, ये वाली चीज़ कर ले। और तीसरी चीज़ हमारी तरफ आती है कि हमारी जो डिलीवरी की जो प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम प्रोडक्टिव कर लें, ताकि वो जो एंड कस्टमर तक पहुँचने की पूरी जर्नी है, उसको हम मिनिमाइज कर दें, तो चांसेस बहुत। देखिए ये दोनों तरफ का जो है ना, इट्स बिकॉज इट्स बीन डैमेजिंग अस, बिकॉज आप देर इज ब्रांड को पार्सल रिटर्न होने से नुकसान होता है। सेम इट डजंट बेनिफिट यू एज इन द सेम टाइम एज वेल, बिकॉज अगर इफ यू नॉट चार्जिंग फॉर द रिटर्न, दैट मीन्स के आपको भी एक हेडसेल और एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, बिकॉज वो पार्सल वापस भी आएगा, और फिर वो वापस फिर स्कैन होगा, फिर स्टेटस अपडेट होगा, फिर जाएगा। तो वी अंडरस्टैंड दिस, ब्रांड को भी अपने एंड के ऊपर ये दे नीड टू पुट दिस एफर्ट एज वेल, दे नीड टू मेक श्योर एज वेल कि द क्लाइंट कंफर्मेशन में, क्लाइंट सर्विसिंग में, इस सारे प्रोसेस को स्मूथ करने के लिए उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, और उनको भी इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, जिससे म्यूचुअल सबको फ़ायदा और बेनिफिट हो। We would like, since you heading this regional, you're the regional sales head of Trax, we want you to share some insights with as well. If we are talking about Punjab, हमारे इस पंजाब में और the KPK वाले रीजन के अंदर कौन सी सिटीज़ है जिनका क्वांटम ऑफ ऑर्डर्स ऑन डेली बेसिस सबसे ज़्यादा? इफ वी वांट यू टू narrow it down from 1 till 5, can you please share it with us? हाँ, इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था कॉल करियर में, उस ज़माने में मैं इसी को बड़ा कॉन्फिडेंटली कहता कि एक बहुत बड़ा बिजनेस जो था, वो कहीं साउथ में, जिसको हम कराची प्रोमिनेंटली कहते हैं, वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस का एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, और लोग वहाँ से बहुत ज़्यादा बिजनेस रन करते। कि अब इस पर अगर मैं बताऊँ, तो इस पर लाहौर इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड वेरी लुक्रेटिव काइंड ऑफ अ हब फॉर ऑल द लॉजिस्टिक कंपनीज दे शुड वर्क ऑन। और अगर मैं आपको टॉप 5 बताऊँ पंजाब की रीजन्स में, सिटीज़ में बताऊँ, तो उसमें लाहौर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फैसलाबाद इज़ डूइंग वेरी गुड, मुल्तान इज़ डूइंग वेरी गुड, रहीमिया खान इज़ डूइंग वेरी गुड। हालांकि उकाड़ा की साइड पे बहुत अच्छा हमारा काम हो रहा है, सियालकोट में उसके बाद हमारा बड़ा अच्छा काम हो रहा है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। उसके बाद कुचावाला, दीज आर द वेरी प्रोमिनेंट काइंड ऑफ सिटी, टॉकिंग अबाउट माई रीजन एज अ पंजाब, यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पे पेशावर में बहुत अच्छा काम हो रहा है, वाकैंड में बहुत अच्छा काम हो रहा है, इस्लामाबाद, रावलपिंडी ऑफ कोर्स इज़ अ ट्विन सिटीज़ काइंड ऑफ प्लेस। तो ये सिटीज़ हैं जो कि बहुत एग्रेसिवली डेवलप हो रही है, बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रही है। लेकिन लाहौर की जो कंट्रीब्यूशन है, लाहौर का जो क्वांटम है, उसमें इतना पोटेंशियल है, इतना मार्जिन है। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि अभी हमें कहीं पे भी कोई बहुत डायरेक्ट कंपटीशन को फेस नहीं करना पड़ा, क्योंकि इतना ज़्यादा बिजनेस अवेलेबल है कि एवरी कंपनी कैन गेट दिस शेयर।
एंड दे आर डूइंग वेरी गुड इन बिटवीन. अब अच्छी बात यह है जिसमें मैं बड़ा इंकरेज करता हूँ इस बात को, मैं हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करता हूँ तो इंकरेज करूँ कि इस वक्त जो कंपटीशन है हमारी तमाम कंपनी में जो मार्केट में काम कर रही है, दे आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज द कंपटीशन इज़ वेरी ट्रांसपेरेंट. Like if you're talking about 10 years back, when there are only 3 or 4 bigger companies into the market, they have a monopolized kind of environment. They are the giants. Ultimately, you are supposed to go to them and for any kind of a service. But now you have a lot of variety. If I'm talking about Lahore, it's almost 35 to 40 companies are working only in Lahore who are giving the service. बिल्कुल ही सही बात है. आई वुड पर्सनली ऑल्सो लाइक टू नो कि अगर जब ट्रैक्स एक पार्सल पिक करती है, सबसे क्विकेस्ट डिलीवरी कहाँ होती है और सबसे डिलेड डिलीवरी कहाँ होती है? डिलेड नॉट इन टर्म्स दैट यू आर डिलेइंग इट, मतलब इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस प्रोसीजर कौन सी फार फेच सिटीज़ हैं. अच्छा, हमारा जो ओवरऑल नेटवर्क है, इट्स ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 700 सिटीज़ आर पार्ट ऑफ द होल काइंड ऑफ अ नेटवर्क. बलूचिस्तान की साइड जो है वहाँ पे हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है. गिलगित बल्तिस्तान की साइड पे हम थोड़ा सा चैलेंजिंग इन्वायरमेंट फेस करते हैं. इस तरह कश्मीर की बहुत एक्सटीरियर साइड जो है वो हमारे लिए चैलेंजिंग है, जहाँ पे हम बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं. हम पंजाब में बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं. साउथ इज़ डूइंग वेरी गुड बिकॉज आर हेड ऑफिस बेस इन कराची, वहाँ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. नॉर्थ की मेजर सिटीज़ टिल पेशावर, यहाँ पे हम बहुत अग्रेसिवली काम कर रहे हैं. लेकिन बलूचिस्तान अल्टीमेटली इज़ अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर एवरी अदर काइंड ऑफ अ कंपनी बिकॉज वहाँ के डेमोग्राफिक, वहाँ के डिस्टेंसेज, उन चीज़ों को कवर करना, कॉप अप करना. लेकिन हम बड़ा प्रोएक्टिवली वहाँ पे काम कर रहे हैं. हमारी कोशिश है कि अगले कुछ महीनों में हम वहाँ पे प्रॉपर अपने ऑफिस और रिटेल को नेटवर्क को एस्टेब्लिश करें ताकि वहाँ पे हम कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकें. डू यू डिलीवर इन हुंजा? नो, वी आर नॉट. So if somebody places an order from Hunza, we're not accepting this order straight away. It's not available in our system city kind of a criteria. So we defined very clear, very crystal clear kind of like 7 cities means 7 cities. You can connect some sideline kind of a area with definition of the main city if it's in the city. and then it's the responsibility of the brand and the end user that they come and pick it up. Certainly, because yes, certainly. तो गिलगित अगर कोई हुंजा से ऑर्डर करेगा तो गिलगित को सिलेक्ट कर लिया, then तो हम कनेक्ट करके उसमें कहीं प्लान करवा दें. अली मुझे बताएं कि आपने आई थिंक लॉजिस्टिक्स का एक कंसोर्शियम भी बनाया हुआ, एंड यू आर पार्ट ऑफ इट. Maybe I'll say you're a founder of that consortium as well because you took that initiative. उस क्यों बनाने की जरूरत पड़ी और उससे क्या फ़ायदा हुआ और कुछ आउटकम भी है उससे? बिल्कुल जी, अनएक्सपेक्टेडली द आउटकम इज़ वेरी प्रोएक्टिव, वेरी एग्रेसिव. अच्छा, उसको बनाने का मकसद ये था कि मुझे लगता था कि पिछले 12 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, जिस मैंने आपको शुरू में बताया कि इसको हम इंडस्ट्री नहीं बना पाए. हमने शॉप्स बना ली, हमने इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस पे काम किया. इसको कहीं ना कहीं कनेक्ट करना बड़ा ज़रूरी है और तमाम स्टेक होल्डर का से होना बहुत ज़रूरी है. उस ग्रुप को बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं इसमें इंडस्ट्री में कहीं वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता था. अब उसके कुछ स्टेप्स हैं जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मार्केट में मिल रही है. लोग बहुत ज़्यादा उसको इनकरेज कर रहे हैं. उसका मेन कंसर्न ये था कि तमाम लॉजिस्टिक पार्टनर्स जो स्टेक होल्डर्स है, दे शुड बी पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, and all those people who always have the blames or always have the complaints about the logistic company, they can just come over. They are most welcome to just come over, give us your feedback, your concerns, your problem, and we can ensure to give you the best kind of a solution on a very short time. उस पर हमने इनिशियल इस कॉज पे मैंने काम शुरू किया और मैंने मुख्तलिफ लाइक माइंडेड लोगों से बात की, डिस्कस किया, उस पर मिल के काम शुरू किया. अल्हम्दुलिल्लाह उस कम्युनिटी में इस पर तकरीबन 8 से 9 हज़ार लोग जो हैं वो कनेक्टेड हैं, सोशल मीडिया पे हमारे साथ कम्युनिकेशन में हैं और उसको बहुत रैपिडली हम ग्रो करते जा रहे हैं. और उसका सिर्फ मकसद ये है, उसमें कहीं पे भी फेम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं है. उसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इस इंडस्ट्री को कहीं कनेक्ट किया जाए और ओवरऑल हम क्लबिंग पे काम करें. अभी भी आज हमारा जो मार्केट का एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको हम तमाम लॉजिस्टिक कंपनीज कहीं ना कहीं फेस कर रही हैं, ये कि हमारी आपस में यूनिटी में थोड़ा सा गैप है. हम कहीं पे इकट्ठे बैठ कर जो जैसे अभी रिसेंटली फ्यूल की जो प्राइसिंग हिट की है, उसकी वजह से हमें एक जेन्युइन कंट्रीब्यूशन इंजेक्ट करनी है. बाय ऑल मीन्स हमें वो करनी है, क्योंकि लॉजिस्टिक का काम शुरू होता है बाइक या गाड़ी से और उस गाड़ी में फ्यूल डलेगा तो चीज़ आगे चलेगी. उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं कॉस्ट को इम्पैक्ट करना. तो इन तमाम चीज़ों पे हम लोग काम करें और उस ग्रुप को हमने बड़ा कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट रखा. इट्स नॉट अ ओपन फॉरम दैट एवरीबडी जस्ट कम्स इन एंड स्टार्ट बैशिंग आइदर इट्स अ कोरियर कंपनी और आइदर इट्स समबडी हु हैव द प्रॉब्लम. It's a control. I have a team available who can just scrutiny the whole kind of information comes over there. Once it's done, if a problem is not resolvable in between the logistic partner and the courier and the end customer, then हम उसको वहाँ पोस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं रेलिवेंट लोगों को वहाँ पे हम कहीं कनेक्ट करवाएं और वो उसको फैसिलिटेट करें. मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि जितने भी मेरे जो कोलीग्स हैं डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे हैं, दे ऑल आर वेरी सपोर्टिव फॉर द इंकरेजमेंट और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ग्रुप एंड एवरीबडी इज वेरी प्रोएक्टिव. And whenever something comes to us, any complaint, they always give a very candid and very solid kind of feedback to proceed further. True. Well, nicely, I'll say nicely answered. And we talked about the logistics problem. We talked about the logistic issues. And, Ali was kind enough
to acknowledge the problems and the solutions, which is an ongoing process, and it's part of the ongoing strategy as well. Tracks Ali and Ali Qureshi, both of them are working in order to find a solution to the problems. And definitely जिस तरह problems आएंगे, solutions आएंगे, एक दिन के अंदर in one click के ऊपर सारे problems resolve नहीं हो सकते हैं. We have covered this logistics part. We'll come to the last part, which is this. I think मैंने podcast क्यों शुरू किया? मैंने podcast इसलिए शुरू किया, I've taken so much from the industry and I want to give something in return to the industry. It doesn't matter कि मैं जो भी काम करूँ पैसों के लिए करूँ, something I have to do it for my soul as well. But I think कि you have taken, our industry has given you a lot of things. You've been blessed. So you will talk about your other business as well, which is MH Consultancy Services. उसका क्या reason है? You make MH Consultancy Services, and उसके umbrella में और उसके अंदर क्या services आप provide कर रहे हैं और किस तरह कर रहे हैं? जी उमैर, उसकी भी वजह जो बनी थी वो कोविड का जब ये एरा स्टार्ट हुआ तो मुझे लगा कि मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो रहे थे, जॉब्स के बहुत सारे मसले थे. और मुझे क्योंकि एज अ पर्सन हु स्टार्टेड हिज करियर एज अ जॉब काइंड ऑफ स्टाफ, मुझे फील होता था कि जब आप इंटरव्यू के जाते हैं और आपको 2-3 इंटरव्यूज़ में कहीं पर रिजेक्शन को फेस करना पड़ता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो अपब्रिंगिंग होती है ना, वो कहीं ना कंप्रोमाइज़ होता है. यू ऑलवेज फील अ वेरी शेकी काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी. तो मैंने जब उस आइडियोलॉजी पे काम शुरू किया और लोगों को मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि मेरा कॉर्पोरेट जो कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग थी, बहुत ज़्यादा अच्छी मेरी पेनिट्रेशन थी HR और इन तमाम कंपनीज़ में. तो मैंने इस कॉज पे इस काम को स्टार्ट किया कि लोगों को एक तो ऐसी कंपनी से कनेक्ट करवाया जाए जहाँ पे जेन्युइन जॉब्स अवेलेबल हैं, और सेकेंडली इसको इंश्योर करवाया जाए कि अगर किसी बंदे को आप हायर नहीं कर रहे तो द एम्प्लॉयर शुड गिव मी द फीडबैक. मैंने इस पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया, और मैंने जिन भी कंपनीज़ में मैं लोगों को रिकमेंड करता हूँ जॉब्स वगैरह के लिए, उनको हम स्पेशली रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको अगर हम 10 लोग भिजवा रहे हैं उसमें से 3 लोगों को इंटरव्यू करते हैं, 7 लोगों को अब नहीं कर रहे तो वजह बताएं, और 3 में से जिन 2 को अपने हायर नहीं किया उसकी भी फीडबैक दें, ताकि वो जो एंड बच्चा है जो मार्केट में भी पहली दफ़ा आया वो बड़ा एंथुजियास्टिक है टू गो एंड ग्रो हिमसेल्फ आफ्टर गेटिंग अ डिग्री फ्रॉम अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ यूनिवर्सिटी. तो उसको ये चीज़ पता लगे कि ये गैप वो है जिसको अगर वो आइडेंटिफाई करके रिजॉल्व करता है तो नेक्स्ट इंटरव्यू में वो उससे बेहतर. Definitely, we point out by this process we point out the problem, and then we find out a solution to it. And this is a good initiative taken by you. I run an agency as well. I hire people as well, and in the human resources management has become an issue these days because resources मिलते नहीं है, मिल जाए तो competitive नहीं मिलते हैं. And definitely out of there are so many companies which are providing these services, but not everybody can afford that, because I am not a company which contains more than 100 plus employees. I'm a company which has an employee of 30 to 50 people, so I can't afford them. So if I can't afford them, then definitely, but I need resources. In order to find resources, it's so kind of you that you're running this MH consultancy services, and you're helping community, you're helping in building the community, finding out the jobs. Kudos to that, and I'm really thankful and grateful कि आप ये काम कर रहे हैं, and we should become part of it, and we should help. Coming to the last question, Ali, I would like to ask you, what is the message you want to give to the startups and youth of Pakistan? अब मैं 2-3 चीज़ें कहीं गाइड करना चाहूँगा कि आप जब भी स्टार्टअप की जर्नी स्टार्ट करते हैं या जो भी आप काम शुरू एज एंटरप्रेन्योर यू आर सपोज टू स्टार्ट समथिंग, यू ऑलवेज हैव अ पेशेंस एंड बिलीव एंड करेज. These 3 things are very important. If you have a patience, because हर बिजनेस के अप्स एंड डाउन आते हैं, उसमें कहीं ना कहीं चैलेंजेस भी आते हैं, बट उसमें आपको उससे बैक ऑफ नहीं करना. एक तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है. फिर दूसरी चीज़ इस बात पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यू कैन डू इट. यू शुड बिलीव ऑन योर सेल्फ कि यू कैन डू इट. उसके बाद आप कर सकते हो. और करेज का मतलब ये है कि आपको स्टेप्स लेने से कभी भी कतराना नहीं चाहिए. मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी काम किए, स्टार्टअप्स पे काम किया, अपने बिजनेस को रन किया, जॉब्स की, वहाँ पे मैंने यही कोशिश की कि यू शुड बी अ वाइटल कॉन्ट्रीब्यूटर एंड यू शुड बिलीव इन योर सेल्फ. अगर ये चीज़ें आपके अंदर हैं तो फिर आपको ज़िंदगी में कोई चीज़ रोक नहीं सकती. आपके पास स्काई इज़ द लिमिट इज़ अ वेरी शॉर्टेस्ट काइंड, वेरी सिंपल काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट फॉर योर सेल्फ, अगर आप इस चीज़ पर बिलीव रखते हैं. क्योंकि दुनिया में आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, आपको बुरे लोग भी मिलेंगे, आपको डिस्करेज करने में मिलेंगे, इनकरेज करने में मिलेंगे, लेकिन अगर आपका बिलीफ अपने ऊपर स्ट्रांग है और अपने वो बिलीव रखते हैं और अल्लाह ताला भी यकीन है कि वो आपके लिए बेस्ट प्लानर है, तो फिर आपको ज़िंदगी में इंशाअल्लाह किसी चीज़ में भी कोई नाकामी का सामना नहीं करना. Well, fair enough. It was lovely talking to you. It was lovely having you as a guest. And I hope, these all insights will be very useful to the people, those who will be listening to the podcast once we publish it. We'll try to have more sessions. We'll try to meet you more. And, there are so many things which still needs to be done, still needs to be taken care of in terms of business, in terms of so many other things as well. Until then, we'll see you later, and best of luck for the future. Thank you. Assalamu alaikum.